In this video, we'll discuss about embryogenesis. Now, what is embryogenesis? It is formation of embryo. And in this video, we'll discuss how this embryo is being produced in dicot plants. Welcome to my channel at Botanist Meena. Now, we'll learn one by one how this happens. Fertilization take place. Now, what is fertilization? A male gamete fuses with the egg or female gamete. This is called as fertilization. And after fertilization, post fertilization changes led to the formation of the embryo. Now we can see here, now male gamete and female gamete, that is egg. Now here we can see this is the embryo sac. This is embryo sac which is present in ovules, and it has egg here, and these are two helping cells, synergids. These are antipodal cell, and this is primary endosperm nucleus. Now, to watch the whole details of embryo sac and ovules and double fertilization, I'll share a link in the description box. You can watch the videos of double fertilization as well as structure of ovules. Now, during fertilization, male gamete reaches to the female gamete. So, this is the oosphere or egg which is haploid in genetic constitution. So, male gamete will fuse with the egg, and after fusion of male and egg, now this is egg, right? And this diploid structure is produced which is called as zygote. Now this zygote is having diploid genetic constitution because male and female, they have fused. So this zygote is responsible for the formation of the embryo. And in the center we can see, because the double fertilization occurs. Now what is double fertilization? One male gamete fuses with the egg and second fuses with the primary endosperm nucleus. We can see here two primary endosperm nucleus, and this is the third male gamete which is fusing with the primary endosperm nucleus, and ultimately this will turn into a triploid, or depending upon the ploidy level of an organism or species. Now this endosperm nucleus, it ultimately lead to the formation of the endosperm, right? So अब ये जो जाइगोट बन गया है, इससे पूरा एम्ब्रियो बनना है, यहाँ से एंडोस्पर्म बनना है जो इस जाइगोट को नरिशमेंट देगा या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. Now, after fertilization, there is formation of embryo, right? So this is called as embryogenesis. एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? जाइगट से. जाइगट क्या है? डिप्लॉयड जो भी हमने देखा है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. क्योंकि हम डाइकॉट प्लांट में डिस्कस कर रहे हैं. डाइकॉट प्लांट वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं. तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे बीन्स, पल्सेस, पी, किडनी बीन्स, बहुत सारी एग्जांपल हैं डाइकॉट प्लांट्स की जिनमें ये हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. सो अगर हम देखें डाइकोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड प्लांट लिया है, कैप्सुला बर्सा पास्टोरस. आप देख सकते हैं ये क्रूसीफरी फैमिली को बिलोंग करता है. तो ये पौधा है कैप्सुला बर्सा पास्टोरस, ऑल्सो कॉल्ड एज शेफर्ड्स पर्स, एंड दिस बिलोंग्स टू क्रूसीफरी फैमिली. जैसे हम कुछ भी एक डिस्कस करना है उसको डिटेल में, उसका हम ये रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं. सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन और जाइगोट कैसे बनता है. अब जाइगोट में जो डिविजन्स होंगी वो होंगी माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉयड ही रहेगा. तो ये डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही सेल्स बनेंगे, तो इसको माइटोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं. अब अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा ये एंडोस्पर्म. तो ये होगा नरिशमेंट देने के लिए. और यहाँ जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो बन रहा है. अगर हमने जाइगोट को इधर बनाया तो हम एम्ब्रियो कैसे बनाएंगे? ठीक है. तो यहाँ से ये पूरा एम्ब्रियो जो बन रहा है जाइगोट से, वो हमने प्रोसेस पूरा डिस्कस करना है. क्या होगा? व्हाट विल हैपन? नाउ दिस इज़ द जाइगोट. अब जो जाइगोट है इसको हम, जैसे पहले जब ये हैप्लॉइड था तो हम बोल रहे थे इसको oosphere. अब जब इसके साथ आ गया मेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो ये बन जाएगा, दिस विल बी oospore. ठीक है. तो इसका जो जाइगोट का जो डिप्लॉयड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो जाइगोट है दो में डिवाइड करेगा. आप देख रहे हैं हम यहाँ पर ये जाइगोट जो है, आई विल मेक यू हाउ इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे जैसे ये जाइगोट है, इसका ये एक न्यूक्लियस है. अब इसके दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ठीक है. और फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी. तो दो सेल्स बन गए, राइट. तो
एक सेल को हम बोलते हैं, नीचे वाले सेल को बोलेंगे एम्ब्रॉयनल सेल या एम्ब्रियो सेल, और इस वाले सेल को हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा है, लार्जर है, एंड दिस इज स्मॉलर, जो एम्ब्रियो बनाएगा। तो जाइगोट डिवाइड करके बना रहा है एम्ब्रॉयनल सेल एंड सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। तो जो अभी हमने देख लिए हैं, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये 2 सेल्स बन गए, राइट। अब ये जो था, जो ऐसे हमने देखा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। अब ये जो ये न्यूक्लियाई है, ये ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये भी ऐसे डिवाइड करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा और वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर भी वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये ऐसे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आप हम देख रहे हैं, ये ऐसे इन्वर्टर टी शेप बन गया है। मीन यहाँ पे ऐसे सीधा आ गया और फिर ये ऐसे करके इन्वर्टर टी शेप। तो इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अभी जो पूरी तरह से एम्ब्रियो नहीं बना है, जिसने आगे जाके डिफ्रेंशिएट होना है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो। अब हमारे पास यहाँ बने हैं 2 सेल्स, ठीक है। अब फिर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, फिर इनमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगी क्वाड्रेंट स्टेज, 4 सेल स्टेज। और ये जो ऊपर वाले सेल हैं, ये वाले, अब ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये वाले ऊपर वाले जो सेल्स अभी थे, 1 और 2 थे, ठीक है। अब इनमें और सेल डिवीजन होंगी, ये 2 न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ से भी 2 न्यूक्लियाई बन गए, ये भी वॉल फॉर्मेशन हो गया, ये भी वॉल फॉर्मेशन, ये भी वॉल फॉर्मेशन। तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका जो ऊपर वाला सेल है, ये वाला सेल, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा सा हो जाएगा। इसको हम स्टोरियल फंक्शन बोलते हैं। अब ये जो नीचे वाले सेल है, ये वाला, तो ये 4 में डिवाइड कर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज। अब फिर 4 आगे क्या होगा? ये जो 4 बने हैं हमारे पास, ऐसे करके 4 बन गए, ठीक है। 2 मान लीजिए हमें आगे नज़र आ रहे हैं, 2 पीछे नज़र आ रहे हैं। अब उनमें फिर डिवीजन हो जाएगी। सो अल्टीमेटली कितने बन जाएंगे? 8 सेल्स। तो इनको हम बोलते हैं 8 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं? 8 सेल स्टेज, राइट। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट स्टेज के बाद हमारे पास बन गया ये ऑक्टेंट स्टेज। दिस इज़ ऑक्टेंट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर। ये ग्लोबुलर बन गया, मीन गोला सा बन गया ऐसे करके, तो इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी बोलते हैं। और ऊपर वाला ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस हैज़ डिवेल्प इनटू अ सस्पेंसर पार्ट, ये वाला, जिसमें ऑलमोस्ट 6 से 10 सेल्स होंगे, 6 to 10 सेल्स। और ये ऊपर वाला जो सेल है, दिस हैज़ टर्नड इनटू अ वेसिकुलर सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज हस्टोरियम, बड़ा सा हो गया ऐसे करके। तो ये पूरे को हम सस्पेंसर बोल रहे हैं। और ये जो सेल है इमीडिएटली प्रो एम्ब्रियो के ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो आगे हम देखेंगे। अब ये प्रो एम्ब्रियो है, या अभी ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, गोला सा बना हुआ है। ये और एनलार्ज हो गया वेसिकुलर से। इसका काम होता है नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और ये है सस्पेंसर पूरा, और ये है पूरा एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ से, ये जो बिल्कुल इमीडिएटली सस्पेंसर के बाद वाला पार्ट है, इससे बन जाएगा रूट कैप, रूट टिप, मीन यहाँ से रूट की डेवलपमेंट होगी। अब ये जो बाहर की लेयर बन गई, इसको बोलते हैं हम डर्मेटोजन। इससे एपिडर्मस बनेगा। ये जो हम देख रहे हैं सेंटर में, ये प्रोकेम्बियम है जो वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो पार्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम, इससे कॉर्टेक्स एंड पित्त बनेगा। तो ये पूरा जो अभी अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट है, इसमें सेल्स का फंक्शन डिज़ाइन होना शुरू हो जाता है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसी को हम ग्लोबुलर स्टेज भी बोलते हैं और प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने बताया हुआ कि फंक्शंस क्या है सस्पेंसर के। सस्पेंसर का काम क्या है? कैरी करना एम्ब्रियो का अपने टिप के ऊपर। मान लीजिए ये सस्पेंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो को अपनी टिप के ऊपर कैरी करना। प्लस ये जो इसका सेल यहाँ पे एनलार्ज हो रहा है, इसका काम है नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सो दूसरा यहाँ से हमने देखा कि ये पूरे टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है? रेडिकल एंड रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा, ये जो आप देखा, ये पूरी ऑर्गन की डिफ्रेंसिएशन हो रही है यहाँ पर ग्लोबुलर एम्ब्रियो की। लेकिन ये जो सस्पेंसर का काम होता है, इसको पुश करना, इसके लिए खाना पीना एब्जॉर्ब करना और रूट फॉर्मेशन में मदद करना। फिर से हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फंक्शन है सस्पेंसर के। पुशिंग एम्ब्रियो इनटू डीप एंडोस्पर्म फॉर नरिशमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एंडोस्पर्म हमने देखा था ना अभी, जैसे हमने देखा था कि ये एंडोस्पर्म जो है ऐसे करके बन गया। अब उसके अंदर ये पूरा एम्ब्रियो बन रहा है, राइट। तो ये एम्ब्रियो जो है पूरा यहाँ से अपना नरिशमेंट लेगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो पूरे हमने अभी पॉइंट पूरे फिर से रिवाइज करते हैं कि हम देखेंगे कि जाइगोट डिप्लॉयड है, 2 में डिवाइड हो गया, एम्ब्रॉयनल एंड सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो को कैरी कर रहा है। सस्पेंसर सेल 6 और 10 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सस्पेंसर खाना पीना एब्जॉर्ब करने में मदद करता है।
और एम्ब्रायनल सेल पहले ग्लोबुलर स्टेज में होता है जिसको हम प्रो एम्ब्रायनल स्टेज बोलते हैं। देन इट विल गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्डेट और हार्ट शेप, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। फिर हमने देखा कि उसमें डिफ्रेंसिएशन होके, डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गन डिज़ाइन हो जाना है कि किससे क्या बनेगा। सो रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन कहाँ से बनेंगी। अब कॉटिलिडन कैसे आगे डेवलप होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर अब टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कैसे, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये वाली स्लाइड। सो पहले हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था, अभी हमने देखा था कि ऐसे करके था, ये पूरा ऐसे करके था, ठीक है। अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये इसकी शेप ऐसे होनी शुरू हो जाती है, हार्ट शेप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्डेट शेप। क्या बोलेंगे? कॉर्डेट शेप और हार्ट शेप। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो है, ये जो हार्ट शेप बना है ऐसे करके, ये और एनलार्ज हो जाता है ऐसे करके, ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉटिलिडन बननी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से, तो हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी स्टेज और टॉर्पेडो स्टेज इसको बोलते हैं। सो ग्लोबुलर एम्ब्रियो गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्डेट और हार्ट शेप, एंड एम्ब्रियो की डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है इनटू रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स गेट इलोंगेटेड, जैसे लंबे हो गए, दे विल ग्रो फास्ट। और यहाँ पे सेंटर में रहेगा प्लूम्यूल पार्ट, जो अभी अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। एक अमाउंट ऑफ टिश्यू, मतलब जैसे इफ़ आई शो यू हाउ दिस इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, जैसे ये बन गया ऐसे करके, तो यहाँ पर ये वाला जो माउंड है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होंगे जो अभी अनडिफ्रेंशिएटेड है, जिसको हम प्लूम्यूल बोलेंगे, इससे आगे शूट सिस्टम बनना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया है। अब मैच्योर एम्ब्रियो में क्या है हम डिस्कस करेंगे। ये वही हो गया हास्टोरियल सेल, ये सस्पेंसर है जो कैरी कर रहा है एम्ब्रियो को। ये पूरा एम्ब्रियो यहाँ से ऐसे डेवलप हो गया। ये वाला पार्ट जो है इसको हाइपोकटाइल बोल रहे हैं, यहाँ से रूट सिस्टम बनना है। और ये जो पॉइंट है जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, जिससे शूट सिस्टम जो अभी हम डिस्कस किया, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये दो लंबी वाली कॉटिलिडन्स हो गई जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है प्लूम्यूल, यहाँ से ये अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे, जो कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट है एपिकोटाइल, और जो बिलो है हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल पार्ट, एंड दीज आर टू कॉटिलिडन्स। तो ये हमारे पास पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बन गया डाइकॉट प्लांट का, जिसमें 2 कॉटिलिडन है। डाइकॉट का क्या मतलब होता है? 2 कॉटिलिडन्स। तो यहाँ पे वी कैन सी हियर देयर आर 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट ओवर हियर। सो ये मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने देखा, पहले कॉर्डेट स्टेज था, कॉर्डेट शेप, फिर कॉटिलिडनरी स्टेज आ गई या टॉर्पेडो स्टेज आ गई, फिर ये हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो आ गया। जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो, जैसे हमने कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस का एग्जांपल ले रहे थे, शेफर्ड्स पर्स उसका कॉमन नेम है, उसमें पैक कैसे होता है ये देख रहे हो आप। ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है, ये कॉटिलिडन्स हैं। ये पूरा सीड है जिसके अंदर ये पूरा पैक्ड है। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्लूम्यूल है, जहाँ से शूट सिस्टम बनेगा। ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल पार्ट हो गया, और ये ऐसे अटैच्ड है सीड के अंदर। और ये जो एम्ब्रियो है जब बन जाता है, और ये पूरा सीड बन गया जिसके अंदर ये हमारे पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ऐसे करके पूरा पैक हो जाता है। तो ये डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। जब फिर से कंडीशंस फेवरेबल आएंगी एंड इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, राइट। सो वी कैन सी हियर मैच्योर एम्ब्रियो। सो ये मैच्योर एम्ब्रियो है। तो अगर हम यहाँ देखें, मान लीजिए कोई भी सीड हम ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं बीन सीड का, बीन सीड, किडनी बीन जिनको हम बोलते हैं। इफ़ वी सोक दैम एंड देन ओपन और जर्मिनेट दैम एंड ओपन दैम, राइट, सो वी कैन सी हियर। सो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सीड्स की, इनको हम सीड कोट बोलते हैं या टेस्टा एंड टेगमेन बोलते हैं। और सेंटर में यहाँ एम्ब्रियो है, और दीज 2 आर कॉटिलिडन। ये भी कॉटिलिडन है, ये भी कॉटिलिडन है। सो देयर आर 2 कॉटिलिडन्स, राइट। और सेंटर में हम देखेंगे ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रेडिकल, जहाँ से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। एंड दिस पार्ट, ये वाला प्लूम्यूल पार्ट, यहाँ से बनेगा शूट सिस्टम। और ये जो पार्ट है इसको देखो, ये दिस इज़ द एम्ब्रायनल एक्सिस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, राइट। सो ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। और यहाँ पर हमारे पास ऐसे 2 कॉटिलिडन ऐसे अटैच्ड हैं। तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पे ये कॉटिलिडनरी नोड या अटैचमेंट पॉइंट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, बिलो कॉटिलिडन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर कॉटिलिडन्स। ये वाला जो पॉइंट है इसका, दिस इज़ हाइपोकोटाइल एंड दिस इज़ द एपिकोटाइल. This plumule will form shoot system when seed germinates or when embryo becomes germinating stage, and this radicle will develop into root system. So this is how embryo is being produced, and embryo is present inside the seed. And mature embryo, as we discussed, this has a
एपिक्यूटाइल, हाइपोक्यूटाइल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल एंड 2 कॉटिलेडन जो सस्पेंसर इसको कैरी कर रहा है. So this is all about structure of dicot embryo. Thank you for watching my video. If you like my video, thank you for watching, and if you like my video, please like, share and subscribe.